Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Sidharth Arora. And friends, we are continuing with our series which is known as Polity Today. तो तुमने कुछ सेशन तो इसके अटेंड कर ही लिए होंगे. Polity Today ये सीरीज में आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आया हूं विद अ सिंगल पॉइंट एजेंडा कि एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए. एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्टर हो, सेकंड अटेम्प्टर हो या उससे भी ज्यादा हो, every teacher will tell you the same thing, every mentor will tell you the same thing, everyone who's guiding you will tell you the same thing कि एडिटोरियल्स पढ़ना होता है. हाँ बिल्कुल, न्यूज पढ़नी होती है. यस सर, हमको क्रिटिसिज्म, एनालिसिस, ये सब पढ़ना होता है. सवाल ये पैदा होता है कि इसको पढ़ना कैसे. सवाल ये पैदा होता है कि इसको समझना कैसे. कभी कभी एडिटोरियल्स वगैरह इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा जाता है that it becomes very difficult for most people to comprehend कि उसमें लिखा क्या है. चलो समझ में भी आ गया, कोई बात नहीं. But how will you assimilate it in your course? How will you assimilate it in your syllabus? How will you actually make some sense out of it? उसको कैसे यूटिलाइज करोगे? पढ़ लिया, समझ लिया, what do you do after that? So in this entire aspect मैंने तुम्हारे लिए ये सीरीज लाई है, that is Polity Today, जिसके कुछ सेशंस तुम ऑलरेडी कर चुके होंगे. आई होप यू हैव वॉच्ड इट, एंड इफ यू नॉट वॉच इट, please stay tuned, and on this channel, in this series, please continue watching those part. मैं इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूं माय फ्रेंड्स. इन डेप्थ एनालिसिस मतलब जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि किस तरह से एक छोटा सा आर्टिकल, एक छोटा सा एडिटोरियल को हम इतना एक्सपैंड कर सकते हैं और इतना ज्यादा अच्छे तरह से इंटरकनेक्टेड पढ़ सकते हैं, that it will be of great advantage to all of you in the exam. So I am Dr. Sidharth Arora. जो लोग मुझे नहीं जानते, अनअकैडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड SIDLIVE से जाना जाता है. कोड सेट लाइव, दिस इज द कोड जो आप यूज करोगे जब भी आप प्लस क्लासेस यूज सब्सक्राइब करोगे, आइकॉनिक क्लासेस सब्सक्राइब करोगे, कोई कॉम्बैट कोर्स लोगे, कोई टेस्ट सीरीज में पार्ट लोगे. प्लीज यूज माई कोड सेट लाइव SIDLIVE एंड आई विल बी वेरी हैप्पी to welcome you on Team Sid Live. Thousands and thousands of aspirants have joined us to give themselves a realistic chance of cracking this exam. Apart from that, code Sid Live use करते तुम्हें immediate huge discount मिलेगा on this great platform which is Unacademy, which is India's largest online learning platform. And I hope and pray, and I'm practically 100% sure कि आज नहीं तो कल this will enhance itself to even greater heights. अब मैं इतना यकीन से ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इतना यकीन से इसलिए बोल रहा हूं because Unacademy has the best educators under one roof. On this platform, you'll get all the best educators for all subjects: politics, governance, international relations, governance, economics, history, geography, all subjects. ये सिर्फ एक के लिए नहीं है. So use my code SIDLIVE and we will be welcoming you to Unacademy. इस बार awesome result आया. Okay, AIR 2, 9, 10, 13, 14, 16, 20, और मुझे यकीन है कि अगर आप मेहनत करते चले जाओगे तो अगले बार तुम्हारा, अगले साल तुम्हारा भी मेरिट लिस्ट में नाम शुमार होगा. वी विल बी वेरी हैप्पी and we will try and give our best to give you a realistic chance of cracking this exam. पिछले कुछ सालों से वी हैव डन ऑसम, और मैंने पिछले साल और इस साल दोनों एग्जाम में मैंने स्क्रीनशॉट के साथ शेयर किया था कि हाउ मोर देन 90% ऑफ द एग्जाम एक्चुअली मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स में से आया. नाउ वी आर ऑल्सो गिविंग यू वन मोर रीजन टू ज्वाइन द 27th October का, विच इज अ बाइलिंगुअल बैच स्टार्टिंग, which will be done by Mr. Gaurav Budania, who is AIR 13, with 5 classes on essay, 2 classes on strategy, and 3 classes on answer writing. So, अब और तुम्हें क्या फायदा नहीं चाहिए? Make sure that you utilize this. Also, please remember and mark your calendar, 31st October, 11 a.m. You have the Unacademy UPSC Environment and Economy Combat. Just use my code SIDLIVE and you will have a chance of having 100% scholarship with rank 1 to 3. 75% scholarship with rank 4 to 10, and similarly 50% and 25%. I hope you understand. This is a great opportunity for you to save money. Also, please remember 31st October तक ये 38% ऑफ है. यार सर चक्रा जाए. 38% ऑफ. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का ऑफर देती है? सिर्फ तुम्हें मेरा कोड याद रखना है SIDLIVE
अब टाइम वेस्ट मत करो माय फ्रेंड्स, मनी मैटर्स एंड दिस विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. टेक अ 9th month subscription and similarly go for the test series. This test series combo साथ में मिलेगा. One subscription to crack it all. Just using my code SIDLIVE. Remember 45,000 rupees worth का टेस्ट सीरीज तुमको मिलता है. What better can you want? अगर प्लस क्लास लेनी है प्लस क्लास लो. आइकॉनिक क्लास जिसमें पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर्स और मटेरियल एंड एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा. जस्ट इमेजिन दिस, इमेजिन इसको देखो. 72,000 बिकम 64,000, 90,000 बिकम्स 81,000. क्या याद करना है? सिड लाइव, SIDLIVE. जहां सब्सक्रिप्शन है वहां पर डाल दो रेफरल कोड सिड लाइव. तुम्हारे पैसे सीधा सीधा 115, 104 बनता है, 153, 138 बनता है. सोच के देखो. जस्ट टेक और अपॉर्चुनिटी. इससे अच्छा रीजनेबल और बेटर अपॉर्चुनिटी तुम्हें क्या मिलेगा? ऑल्सो ये सिर्फ प्लस क्लासेस नहीं है, वी ऑल्सो ऑफर यू मेनी स्पेशल क्लासेस. तो अब स्पेशल क्लासेस में तो और फीचर्स हो गए. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस है, पोल्स है, रेज अ हैंड. रेज अ हैंड में तो तुम मुझसे बात कर सकते हो. इतना इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन इंटरैक्शन हो जाता है. जस्ट मेक श्योर दैट यू डू दिस. आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, लेक्चर नोट्स आएंगे और आप इनको किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ऐप पर यू कैन, सॉरी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर आप देख सकते हो एनी टाइम. ओके, एनी टाइम 24/7 इट इज अवेलेबल. व्हाट बेटर दैट यू वांट. एक ही कोड SIDLIVE and we will be very happy to teach you and give you a chance. Recorded special classes भी है बहुत सारी, जो previous है उनको भी आप watch कर सकते हो. And I'm sure you are a wise gang of students. You must take a wise decision now. So आज का टॉपिक द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मुझे देखा. देखो, वैसे तो मैं इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लूंगा एंड आई फाउंड सम ऑफ दोस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, स्पेशली विद रेफरेंस टू योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. तो एक एक करके करेंगे. अब इस वाले में तो ये मैंने टेलीग्राफ का ही देखा था, सो इट वाज अ वेरी नाइस आर्टिकल. और ये ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडिटोरियल्स को, न्यूज एनालिसिस को, क्रिटिसिज्म को ध्यान से पढ़ो. सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इन इंडिया विल राइट फॉर एडिटोरियल्स, whether it is the Hindu, whether it is the Indian Express, whether it is the Telegraph, or for that matter any of such newspapers. Okay. Now जब ये एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं तो बहुत रिसर्च किया जाता है. क्यों रिसर्च किया जाता है? बिकॉज बहुत कम लिमिटेड टाइम में उनको बहुत सारा मटेरियल आपके साथ शेयर करना होता है. नंबर वन. नंबर टू, को ये सब बड़े रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स है और इनकी सालों साल की, डेकेड्स की एक्चुअली लेगेसी है. सो दे विल नॉट पुट एनीथिंग ऑन दिस एडिटोरियल विच इज रॉन्ग ऑन फैक्ट्स, सो टू से. मे बी ओपिनियन आपसे अलग हो सकता है, लेकिन रॉन्ग ऑन फैक्ट्स आई डोंट थिंक सो. सो एक मुझे बहुत ही अच्छा आर्टिकल मिला एंड दैट आर्टिकल वाज द डिग्निटी ऑफ सेक्स वर्कर्स बाय CK फैसल. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ज्यादातर लोग इसको पढ़ते नहीं है बिकॉज लोगों को लगता है ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है. आई थिंक इससे ज्यादा सिलेबस में कोई है नहीं, बिकॉज दिस इज द चेंजिंग realm or the environment of how the judiciary, how the society, how the executive, how the legislature is changing right before our eyes. And Mr. CK Faisal is an under secretary in law into the government of Kerala and उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड आई ओपनिंग आर्टिकल लिखा है. अब ये आर्टिकल मैं एज इट इज भी पढ़ सकता हूं, लेकिन फिर मैं ऐसे थोड़ा पढ़ूंगा. फिर कैसे पढ़ोगे सर? अच्छा, मैं पढ़ूंगा इसको कनेक्ट करते हुए तुम्हारे सिलेबस के साथ. ओके. और फिर मैं इसमें अपने इनपुट्स भी डालूंगा. राइट. सो आई फर्मली बिलीव दैट with changing times it is very very important कि हम लोग लॉ को एक अलग एस्पेक्ट में देखें एंड ऑल्सो धीरे धीरे इक्वालिटी अचीव हो. एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है, इक्वालिटी कोई बस स्टॉप नहीं होती जहां पर आप पहुंच गए और वहां पर तुमने रेस्ट कर लिया. ये कोई सराय नहीं है, ये एक रास्ता है. ओके. सो ये चलता चले जाएगा. सो इक्वालिटी के लिए हमेशा स्ट्राइव करना पड़ता है. मैंने क्या बोला?
इक्वालिटी के लिए हमेशा स्ट्राइव करना पड़ता है। सो इक्वालिटी एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए नेहरू साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, द वर्क ऑफ द नेशन इज नेवर कंप्लीट। आई एम श्योर ये सबको समझ में आएगा कि ये काम खत्म ही नहीं होता। और इसी एस्पेक्ट में आज हम देखेंगे द डिग्निटी ऑफ सेक्स वर्कर्स, ओके, मिस बाय मिस्टर सी के फैजल, और मैं एक एक लाइन को एनालाइज करूंगा एंड आई एम श्योर दैट आफ्टर दिस यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी hard hitting and a very important topic and something that as educated as responsible citizens तुमको आना ही चाहिए। चलो जी स्टार्ट करते हैं। रेडी? ऑलराइट, लेट्स गो। तो मैं कर क्या रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? अच्छा देखो, तुम लोग को पता चलना चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं इस पैराग्राफ को गंगूबाई काठियावाड़ी से, जहां से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके मैं एक एक पैराग्राफ को जूम इन कर रहा हूं, ठीक है? तो तुम देख रहे हो, हाँ मैं तुम्हारे लिए जूम इन कर रहा हूं, तो मैं इतना पार्ट को मैं जूम इन कर रहा हूं, ऑलराइट। और फिर मैं उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा, वेरी गुड। और फिर मैं ऐसे दूसरे पैराग्राफ का करूंगा। तो बताओ, तुम्हारे तो मजे हो जाएगी कि तुम्हें पूरा का पूरा आर्टिकल भी हो जाएगा और मैं उसमें अपने अपने इनपुट्स भी दे दूंगा। तो ऐसे करके ऐसे तीन चार, ऐसे मैं हर एक की मैंने स्क्रीनशॉट लिया है एंड वी विल टेक दैट स्क्रीनशॉट और फिर उसी स्क्रीनशॉट को हम एनालाइज करते जाएंगे, ठीक है? ऐसे धीरे 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 करेंगे। तो तुम लोग आराम से एक कॉफी ले लो, ओके, सिट बैक, रिलैक्स एंड नोट्स बनाओ। मेक श्योर दैट यू नोट्स बनाओ, ठीक है? ये नोट्स तुम्हारे एग्जाम में काम आएंगे। मेक श्योर एक छोटी सी नोटबुक ले लो और मेरी ये पूरी की पूरी सीरीज के नोट्स बनाते हुए चले जाओ। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहले यहां से, तो ये इस साइड पर जो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन है, मतलब मेरी लेफ्ट साइड है, तुम्हारी, ओके। सो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि गंगूबाई काठियावाड़ी, an upcoming biopic, brings the sorry plight of sex workers out into the limelight. The movie is based on the life of a mafia queen who ruled her area, Kamathipura, in Mumbai, with an iron fist in 1960s. The film begins with her suitors selling her into prostitution. Eventually, Gangubai becomes the madam of the brothel and emerges as a formidable mafia queen. तो ये तुम लोगों को शायद आइडिया नहीं है कि मिस्टर संजय लीला बंसाली की एक नई मूवी आने वाली है, दैट इज कॉल्ड गंगूबाई काठियावाड़ी। और ये मूवी एक बायोपिक है, बायोपिक एज इन ये किसी रियल पर्सन की लाइफ पर बेस्ड है, ओके। उसमें ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द राइट्स ऑफ प्रिवेसी एक्सेट्रा, बट ये स्टोरी एक ऐसी लेडी की जिंदगी के ऊपर बेस्ड है जिनको धोखे से कामातीपुरा एरिया, दैट इज द रेड लाइट एरिया ऑफ मुंबई में सेल ऑफ कर दिया गया था एज अ प्रोस्टिट्यूट। तो शी बिकेम अ सेक्स वर्कर और फिर कैसे शी मूव्ड आउट, शी डिड नॉट मूव आउट बट शी एक्चुअली बिकेम अ वेरी स्ट्रांग पर्सन while लिविंग इन दिस पार्ट। अब ये स्टोरी के अंदर आप एक हीरो, एक हीरोइन भी देख रहे हैं, लेकिन एक ट्रेजेडी भी छुपी हुई है। वो छुपी हुई है ट्रेजेडी ऑफ दैट सेक्स वर्कर, ऑफ दैट प्रोस्टिट्यूट, जिनको बहुत ही कम राइट्स, मुझे लगता ही नहीं, हार्डली कोई राइट्स मिलते हैं, राइट? एंड दिस इज ब्रिंगिंग द प्रॉब्लम और द discrimination or the situations, the unbelievable obstacles जो एक सेक्स वर्कर, एक प्रोस्टिट्यूट एग्जिस्टिंग सोशल लीगल कंडीशन में फेस करती है। ऑल्सो सेम माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, ये एस हुसैन जैदी साहब की एक बहुत ही हार्ड हिटिंग नॉवल है, दैट इज स्टोरीज ऑफ वुमेन फ्रॉम द गैंगलैंड्स। और इसमें भी कामातीपुरा के सिचुएशंस को दिखाया गया, अगेन द रेड लाइट एरिया। इन अदर वर्ड्स, बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे मूवी मेकर्स, बहुत सारे सोशल वर्कर्स, आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी दिखाई देगा, आपको बहुत सारे PILs, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी इसमें दिखाई देंगे कि वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट वी ब्रिंग टू द लाइमलाइट द सिचुएशन ऑफ दीज सेक्स वर्कर्स। अब सिचुएशन क्या होती है कि हमारी ना सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उनको पहले देखना होता है, ओके, पहले एक्सपोज करना होता है,
फिर उनको जनरल लोगों के बीच में द जनरल डिस्कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन में लाना होता है. Then and only then, when civil society starts rising, तो धीरे धीरे legislature, the government, the judiciary obviously is very important part of this entire change that is happening. तो जब आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था ना माय फ्रेंड्स, तब भी डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही थी. ओके, सो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था, तो आर्टिकल 15 में जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, तो उन्होंने लिखा था, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन any equality on the basis of, or rather discriminate on the person on the basis of race, religion, caste, sex or place of birth or any of them only लिखा था. So the state shall not deny, state को जिम्मेदारी दी गई थी, ये फंडामेंटल राइट्स थे, that you will not cause any discrimination on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth or any of them. अब देखा जाए तो ये हम लोग इसको से मेमोराइज कर लेते हैं. व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड कि आर्टिकल 15 लिखने के लिए हिम्मत की जरूरत थी. हिम्मत? कैसी हिम्मत? अरे बाबा, बहुत हिम्मत की जरूरत थी. आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना भी लिखा जाता, नहीं कैसे लिखेंगे, नहीं भी लिखा जाता. दुनिया को जब मैं ये बात बोलता हूं, दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of sex or place of birth. Do you realize कि डॉक्टर अंबेडकर and the founding fathers of the constitution ने पहले इस बात को माना कि there is a social discrimination going on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth. And अब हम इसको फंडामेंटली राइट प्रोटेक्ट करते हैं. आई होप तुम इस दोनों बातों को रिलेट कर पाए. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्शियंस. ये मेरी अंतरात्मा है, मेरी मतलब द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अंतरात्मा है. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्नॉलेजिंग कि देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सिचुएशन which requires remedy, which requires some kind of reference in the constitution. वरना तो तुम भूल ही जाओ. तुम अगर ये बात को ना लिखो, 2 मिनट के लिए सोचो, मैंने लिखा ही नहीं, मैं नहीं लिखता. ओके, रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के हम उसको प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे. हमने उस बारे में मेंशन ही नहीं किया, हम छुप ही गए. हमने ऑस्ट्रिच हेड बनाया और हमने बोला हम तो छुप गए, हमें तो पता ही नहीं चल रहा. ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे नहीं पता. अरे ऐसा नहीं होता. अ फेयर सोसाइटी, अ जस्ट सोसाइटी, अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, अ सोसाइटी जो एक्चुअली ठीक करना चाहती है प्रॉब्लम्स को, अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन, एक नेशन लाइक इंडिया जिसके रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग है, उसको जिम्मेदारी है दैट वो फर्स्ट प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करे और फिर उसको रेमेडी ढूंढे. तुमने एक्नॉलेज ही नहीं किया, कहानी खत्म. वैसे ही माय फ्रेंड्स, जब तक हम सेक्स वर्कर्स की इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वी विल नॉट ब्रिंग इट टू अ नॉर्मल डिस्कोर्स अमंग्स पीपल. इसको कोई एक्नॉलेज ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगी. टाइम हैज कम कि इन आर्टिकल्स को देखा जाए, इन आर्टिकल्स को स्टडी किया जाए, इन आर्टिकल्स की प्रॉब्लम्स को समझा जाए और एड्रेस किया जाए. तो वो चाहे इस मूवी से स्टार्ट हो, क्या पता, हु नोस, या कभी इस नॉवल से स्टार्ट हो, या फिर ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है. सो वील कंटिन्यू ऑन दिस पार्ट. सो फैसल साहब कंटिन्यूज ऑन दिस पार्ट. सेक्स वर्क इज सेल्डम अ chosen profession. In most cases, women are forced into sex work. ये अपने आप में एक बड़ा खतरनाक लाइन है. अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो तुमको ये लाइन एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग लाइन दिखेगी. इट इज सेल्डम अ चोजन प्रोफेशन. और जब चोजन प्रोफेशन ना होता है, इसका मतलब है किसी ने तुमको पुश किया है, किसी ने तुमको फोर्स कोएस किया है, कभी धोखा हुआ है या वट एवर. सो इट ऑटोमेटिकली टेक्स यू अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी. लिबर्टी माय फ्रेंड्स इज लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी. फ्रांसिस क्यूराले म्यूलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली as well as Maneka Gandhi versus Union of India 1978 Supreme Court judgment is very clear about it. Life is living with choice and dignity. Choice is a very important word. और जैसे तुम लिबर्टी का ये कॉन्सेप्ट हटा देते हो, the moment you are forced to go into a profession or into an occupation which is not according to your choice, और सबसे बड़ी बात है तो it is not according to choice, दूसरा उसमें it is major exploitation.
तो ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी मेजर रिस्क of the entire constitution, entire constitutions, the sacred principles of constitution being violated. तो सादत हसन मंटो, मुझे पता नहीं तुमने इनके बारे में पढ़ा है कि नहीं, he was amongst the most hard hitting author that you could ever read. अगर आप मंटो की छोटे छोटे आर्टिकल्स, छोटे छोटे स्टोरीज भी पढ़ोगे ना, तो he was that he could expose the society into pieces, एक टाइम पे द मेजर मोस्ट कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ एन ऑथर थे, डरते थे लोग, द गवर्नमेंट यूज्ड टू गेट स्केयर्ड ऑफ दिस पार्ट. सो उन्होंने एक लिखा था, ट्रैजिक स्टोरी ऑफ अ यंग प्रोस्टिट्यूट इन द गर्ल फ्रॉम दिल्ली. ओके, सो एक ऐसा स्टोरी बनाया, नसीम अख्तर, विक्टिम ऑफ पार्टीशन, वांट्स टू माइग्रेट टू पाकिस्तान. A pimp takes her to Pakistan. When they reach Pakistan, she wants to lead a pious life and get married. But the next day, her husband sells her off to हीरा मंडी. तो जैसे कामातीपुरा दिखाया, बताया गया है इन द अर्लियर पार्ट्स जो हमने डिस्कस किया गंगूबाई की स्टोरी में, वैसे ही यहाँ पर हीरा मंडी, विच इज द इन रेड लाइट एरिया ऑफ लाहौर, एंड चाहे वो गंगूबाई की स्टोरी हो, चाहे नसीम अख्तर की स्टोरी हो, ये एक नाम बदल रहे हैं, ओके, किरदार बदल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सबकी ट्रेजेडी सेम है. और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी सोसाइटी का पूरा एस्पेक्ट बदलने की जरूरत है. जब हम कामातीपुरा या फिर जब हम हीरा मंडी या जो भी ये सेक्स वर्कर्स की लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें कोई रिवल्जन नहीं आना चाहिए, उसमें एम्पैथी आना चाहिए. प्लीज रिमेंबर, हम फ्रेटर्निटी की बातें करते हैं. जब हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of a nation, in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अगर हमें फ्रेटर्निटी वर्ड पर ध्यान नहीं गया, तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट चला जाएगा. सो डॉक्टर अंबेडकर बोलते थे कि विदाउट लिबर्टी इक्वालिटी विल बी लीडिंग टू लॉस ऑफ ह्यूमन एंटरप्राइज. Without equality, liberty will start making one person dominate over the others. And without liberty and equality, fraternity cannot happen. And without fraternity, क्या sense बनता है? That our nation, we are all brothers and sisters. यही word है ना, fraternity. So अगर एक group of people को justice नहीं मिल रहा, we must all race in unison. तो बोलते हैं ना कि a threat to or the intolerance or injustice कहीं पे भी होगा, it will be threat to justice everywhere. So make sure that injustice is stopped, and that is why मुझे फैसल साहब की लाइन बहुत अच्छी लगी, that these are painful lives of sex workers who deserve empathy and not revulsion. तुम्हारी एग्जाम के अनुसार तुम इसको फ्रेटर्निटी के साथ कंबाइन कर सकते हो, तुम इसको जस्टिस के कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन कर सकते हो, तुम इसको सोशल जस्टिस के नाम पे, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो, तुम इसको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के इसमें ज्वाइन कर सकते हो, विच इज आर्टिकल 19(1)(g), तुम इसको 19(1)(g) और तुम इसको आर्टिकल 21 के भी एस्पेक्ट से कर सकते हो. सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ओके, रिपीट दिस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. तुम्हारा चैप्टर देखते चले जाओ कहां पर तुमने करना है. सो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन यहां पर तुम पढ़ सकते हो, पढ़ लो, ओके. आर्टिकल 21 फ्रीडम और रादर लिबर्टी, राइट. तुम फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो, इसी से पढ़ लो. तुम जस्टिस के कॉन्सेप्ट से पढ़ सकते हो, इसको पढ़ लो. तुम सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में पढ़ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड दिस हियर ऑल्सो. तो अगर तुम यहां पर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पढ़ सकते हो, तो यू कैन स्टडी प्रीएम्बल ऑल्सो फ्रॉम दिस एस्पेक्ट, एंड दिस इज द वैरायटी ऑफ थिंग्स पार्ट. और जब मैं आगे पढ़ता जाऊंगा तो हमको बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स दिखाई देंगे
जिसमें तुम जुडिशरी को भी एस्पेक्ट में करोगे। तो जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सारे तुम्हारे आर्टिकल्स और तुम्हारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स यहां से हो जाएंगे। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैं फैजल साहब का इस आर्टिकल को ही वील कंटिन्यू ऑन दिस पार्ट। यहां लिखा है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इंटरप्रेटेड एज द राइट टू लिव विद डिग्निटी बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। तो मैंने आपको पढ़ा आज फर्स्ट पार्ट में बताया था कि व्हाट इज, अगर मैं आर्टिकल 21 को देखूंगा तो आर्टिकल 21 सेज नो पर्सन शैल बी डिनाइड। द वर्ड देखो, एक एक वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखो। नो पर्सन शैल बी डिनाइड द डिनाइड लाइफ और पर्सनल लिबर्टी except according to the procedure established by law. So कितना important word is the two words that are written is life and personal liberty. अब तुम्हें याद होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में लिबर्टी पे क्वेश्चन आया, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लिबर्टी। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट, दैट वी इनफैक्ट ये पॉलिटिकल साइंस से मैं पीएसआई पढ़ाता हूं, तो लिबर्टी पर पूरा एक क्लास जाती है, मतलब 2.5-3 घंटे की क्लासेस होती है ऑफ हाउ टू अंडरस्टैंड द वर्ड लिबर्टी। बिकॉज लिबर्टी, द लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब रट लेना एक बात होती है, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन इज एन एंटायरली डिफरेंट एलिमेंट ऑफ थॉट प्रोसेस ऑल टुगेदर। सो ये वर्ड्स इजी नहीं है। सिर्फ अगर ये इजी नहीं है तो लाइफ तो बाबा ऐसा डिफिकल्ट वर्ड है ना जिसका कोई इंतहा ही नहीं है। बिकॉज लाइफ फिजिकल लाइफ के कॉन्सेप्ट में नहीं मानी जाती। व्हेन आई से लाइफ, तो सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978, फिर फ्रांसिस कोराले म्यूलिन केस एटसेट्रा, ऑल्सो द बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यह बात बोली गई थी कि अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अगर डिग्निटी नहीं है, अगर चॉइस नहीं है, तो लाइफ नहीं है। बड़ा बिग थॉट, थोड़ा सोचने की बात है कि तुम जिंदा हो, ओके, लेकिन जिंदा होना, फिजिकली जिंदा होना, सांस लेना इज नॉट मियरली लाइफ। लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो मैं अपनी क्लासेस में इसलिए इतना डिटेल में पढ़ाता हूं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 21 इन वेरियस वेरियस कॉन्सेप्ट। सो अगर मैं इसी चीज को, आज मैं इसी चीज को मैं हटा दूं, कहां हटा दूं सर, अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को सिर्फ फिजिकल या फिर सो कॉल्ड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से हटाकर आज के इस एडिटोरियल या इस आर्टिकल पर कनेक्ट करूं, तो अभी अभी हमने सोचा था कि द सेक्स वर्कर्स जो है उनको बहुत ही मेजर प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, उनको सोसाइटी रिवल्जन से देख रही है, उनको प्रैक्टिकली कोई राइट्स नहीं मिल रहे, और इन मेनी केसेस सेक्स वर्कर्स को जो राइट टू प्रोफेशन है, वो राइट टू प्रोफेशन के होते हुए भी उनको एक्चुअली फोर्स किया गया है। सो डू यू रियलाइज कि एक तरह से ये आर्टिकल 21 की ह्यूज वायोलेशन है, ओके। एंड आर्टिकल 21 को, एक बात याद रखना, वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, सारी फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये बोलता हूं कि आर्टिकल 21 को एक बहुत अच्छा लाइन यूज किया जाता है, दैट इट इज द बेडरॉक। वर्ड क्या यूज किया गया? इट इज द बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 नहीं तो सारी कहानी खराब। मतलब लाइफ नहीं, लिबर्टी नहीं, तो फिर जिंदगी क्या? फिर तुम क्या करोगे? उठा के जेल में डाल दिया, लिबर्टी खत्म। तुमको चॉइस एंड डिग्निटी नहीं दिया, तुम्हारे सो कॉल्ड ह्यूमन एग्जिस्टेंस खत्म। एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन होती है, जो पूरा फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन होती है, वो से फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द इंडिविजुअल्स टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट व्हिच इंश्योर्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अरे बाबा, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मतलब तो ये हो सकता है ना कि भैया तुम मर गए ना, दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द वर्ड लाइफ। लाइफ इज लिविंग बट विद चॉइस एंड डिग्निटी ऑल्सो। सो चाहे वो बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस है जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स की बात हो रही थी, और तो आई थिंक मेरे सर मैं क्या बोलूं, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोग कोट करेंगे जस्टिस पीएन भगवती को, एंड इन सच अ क्या, एंड आई कोट, इट इज द fundamental right of everyone in this country to live with human dignity free from exploitation.
सो आई होप एवरीवन कैन नाउ अप्रिशिएट कि ये वर्ड्स कितने मैटर करते हैं, और इसीलिए आर्टिकल 21 को बेडरॉक ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। सो जब हम अभी मैंने इसको स्टार्ट किया था तो हमने एक छोटा सा इशू, ऐसा लगा कि एक छोटा सा इशू स्टार्ट हो रहा है, इशू नहीं स्टार्ट हो रहा। दिस इज गोइंग एट द हार्ट, दिस इज गोइंग एट द एब्सोल्यूट हार्ट of what my constitution gives me as a guaranteed fundamental right। तो सोचो, इसको थोड़ी देर सोचो। तुम लोग फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हो, तुम लोग फैसला लेने वाले हो इस देश का, तुम इस देश का भविष्य हो। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मनेका गांधी केस में क्यों बोला गया था। इवन मनेका गांधी केस में तो मैंने, तुमने नोटिस किया होगा, ये पासपोर्ट मैंने अपनी क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। So even right to travel abroad is an integral part of life. I hope this was Maneka Gandhi case. So you will have to appreciate this part and go slow and go thorough with trying to understand कि ये subject कहाँ पर तुम्हें लेकर चले जाएगा। So let us understand. तो हम इसको combine करेंगे. Okay, so we will understand this combination. So ये वही कहानी है, दैट सेक्स वर्कर्स आर सोशली स्टिग्मेटाइज्ड, लीगली ऑप्रेस्ड। ये वर्ड देखो, ये तुम यूज भी कर सकते हो किसी एग्जाम में और अपने आंसर में। दे आर सोशली स्टिग्मेटाइज्ड एंड लीगली ऑप्रेस्ड। नाउ ये वर्ड फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। अब तुम्हें देखो, तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ना कैसे होता है। ओके, यू विल अंडरस्टैंड कि सोशली स्टिग्मेटाइज्ड एंड लीगली ऑप्रेस्ड का मतलब क्या है। तो यहां मुझे तुम्हें दो तरह की डेमोक्रेसीज बतानी पड़ेगी। कमाल है, बिल्कुल हद होगी। दो तरह की डेमोक्रेसी, बिल्कुल। व्हेन आई से डेमोक्रेसी और व्हेन आई से फॉर दैट मैटर द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, और फॉर दैट मैटर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ओके, और फ्रीडम, जो मर्जी तुम्हें यूज करना है, तुम ये इसको दो फॉर्म में यूज कर सकते हो। व्हेन आई से लिबर्टी, व्हेन आई से फ्रीडम और वो दो पार्ट, ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स में होता है। एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है ना, वो लीगल लिबर्टी है। ओके, वो आप कानून में लिख दो। कैसे? जैसे आपने लिख दिया आर्टिकल 40, एवरीवन और shall be equal, there shall be equality before law and equal protection of laws। ये तुमने जरूर सुना होगा। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो एक कॉन्सेप्ट है, ओके, कि हाँ आपने लिख दिया ना, हाँ स्टेट ने लिख दिया सर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ये तुमने आर्टिकल 14 में जरूर पढ़ा होगा। ओके, नहीं पढ़ा तो जब मेरी क्लास में आओगे तो हम डिटेल में कर लेंगे। ओके, सो हमने लिखा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, लिख दिया सर। अब क्या हुआ? काम हो गया, काम हो गया। हाँ लिख दिया हमने, हमारा काम हो गया। अब हो गया हमारा काम। तो हमने, स्टेट ने बोला कि हमने लीगल तुम्हें लिबर्टी दे दी है और अब ये फ्रीडम होगी। अब हम जब भी लॉ बनाएंगे तो सबके लिए समान लगेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऑफ कोर्स ये इतना सिंपल है नहीं, बट यू कैन हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम टॉपिक। जो लिबरल डेमोक्रेट्स थे, जो लिबरल डेमोक्रेसी के सो कॉल्ड फॉलोअर्स थे, वो बोलते थे इतना ही काफी होता है, हमने लॉ लिख दिया, लॉ स्टेट की पावर होती है, स्टेट तुम्हें बचा के रखेगा। दूसरी साइड एक और तरह की डेमोक्रेसी या राइट्स होते हैं, ऑलराइट, जिसको हम लोग सोशल या फिर सोशल इकोनॉमिक राइट्स बोलते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ सोशल राइट्स बोलते हैं, चलो मान भी लो अभी के लिए तुम्हें सोशल इकोनॉमिक राइट्स भी कर लोगे, कोई बात नहीं। तो ये जो सिविल पॉलिटिकल राइट्स या सिविल राइट्स इस साइड आ गए और इस साइड आ गए सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। जब सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स होते हैं तो इसमें हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट करते हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, equal pay, equal work, there shall be no discrimination, etc., etc. All these things is all brought in over this part। यार ट्रेजेडी देखो, ट्रेजेडी कैसे, ट्रेजेडी इतनी खतरनाक है कि जिसको हमने देखा, अब बात मान के चलो, थोड़ी देर के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि देयर कुड बी एन अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें एक वर्कर को हो सकता है कि उसके हिस्से के पैसे ना मिल रहे हो। ओके, एंड मैं मान के चलता हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि मैं ऐसा मान के चलता हूं कि हो सकता है कि लॉ उस पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्कर्स, वैसे तो हमारे यहाँ पे सारे टाइप के लॉज है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्कर के लिए अभी तक नहीं बना है।
या फिर अभी तक उसकी प्रोटेक्शन नहीं हुई है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मतलब लॉ की प्रॉब्लम है, लॉ उसको हैंडल कर लेगा। सो द स्टेट उसके बारे में लॉ बना देगा, पॉलिसी बना देगा, ट्रिब्यूनल बन जाएंगे, लेबर कमिश्नर आ जाएगा, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। अरे बाबा, लेकिन एक सिचुएशन है ना, क्या उस वर्कर के खिलाफ कोई सोशल स्टिग्मेटाइजेशन थोड़ना है, कोई उस वर्कर के खिलाफ सोशल स्टिग्मा थोड़ना है। वो उसको तो यही बात बोल रहा, उल्टा सोसाइटी उसके फेवर में बड़े आराम से खड़ी हो जाएगी कि हाँ यार, इसको मेहनत कर रहा है, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हाँ, सब साथ में हो जाएगा, मूवीज भी बनाएगी, सब कुछ होगा, सब साथ में तुम्हारे साथ। लेकिन डू यू अंडरस्टैंड द ट्रेजेडी वेयर वी आर स्टडिंग नाउ? क्या हो गया? What is the tragedy? Tragedy here is that the sex worker or the prostitutes who have been forced into a profession are neither getting support from law properly nor getting support from the society. सोसाइटी उसको स्टिग्मेटाइज कर रही है और लॉ उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, इनफैक्ट बहुत जगह लॉ उसको ऑप्रेस कर रहा है। द पॉइंट ऑफ दिस पार्ट इज कि आज तक इवन द सो कॉल्ड एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड पीपल जो आप जैसे है ना, आपको भी नहीं, ये एक एक सो कॉल्ड अथॉरिटेटिव व्यू पॉइंट से इंडिया में ऐसे एक सर्वे कर लिया जाए ना, तो लोगों को पता नहीं है कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या नहीं लीगल है। अब इनमें से, तुम में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में डाल सकते हो कि जो तुम्हें लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल है कि नहीं लीगल है, राइट? और उसमें भी तुम येस और नो तो कर दोगे, लेकिन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली पॉइंट अ फिंगर एंड से कि सर इस लॉ के अनुसार ये लीगल है या फिर इस लॉ के अनुसार ये इलीगल है। व्हाई? बिकॉज फैजल साहब एज द अंडर सेक्रेटरी who is also in the Ministry of Law in Kerala, I hope he understands this so very, और उन्होंने बहुत ही authoritatively लिखा, law itself is ambiguous on prostitution। मतलब अभी तक हम यही नहीं कह पा रहे कि क्लियर ना जो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि लीगल है या इलीगल पर ही, द वेरियस अदर एलिमेंट्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन पे, कि उसमें क्या राइट्स है, क्या प्रोटेक्शंस है, क्या वो अरेस्ट होते हैं, क्या उनको अलाउड है, क्या उनको फंडामेंटल राइट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एन नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत ही हेजी एरिया हो जाता है एंड इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। क्यों? क्यों? सो हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा जर्नी देखनी पड़ेगी विद रिगार्ड्स टू लॉ, एंड द प्राइमरी लॉ डीलिंग विद स्टेटस ऑफ सेक्स वर्कर्स इज द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड चिल्ड्रंस एक्ट ऑफ 1956। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आर्टिकल 23, तुमने मेरी क्लासेस अटेंड किए तो तुम सोच सकते हो दैट फोर्स्ड लेबर, ओके, बेगार, ये सब सिस्टम में जैसे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ विमेन आया, तो आर्टिकल 23 से इमर्ज आया ये लॉ विच इज द separation of immoral trafficking in women and children act. According to this law, prostitutes can practice their trade privately but cannot legally solicit customers in public. Organized prostitution, brothels, prostitution rings, pimping, etc., will be illegal as long as it is done individually and voluntarily. A woman, okay, अब इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि इसमें भी मेल प्रोस्टिट्यूशन को कोई रिकॉग्निशन नहीं है। इमेजिन दिस पार्ट। अब यहां पर ये रियलिटी है, हम इस रियलिटी से अपने आप को हटा रहे हैं, और जब किसी चीज को हटा दिया जाता है रियलिटी की व्यू पॉइंट से, वो ठीक नहीं होता, वो इग्नोर हो जाता है, वो ठीक नहीं होता, वो खराब हो जाता है, वो और एक्सप्लॉइट होता है। सो as long as it is done individually and voluntarily, a woman can use her body in exchange for material benefit. Sex workers are not, please underline the word, not protected under labor laws. Now, this is the important context. The situation here is कि ये 1956 का लॉ है। सर पुराना लॉ है, पुराना लॉ है,
लेकिन प्रोस्टिट्यूशन उससे बहुत पहले का प्रोफेशन है। इनफैक्ट माना जाता है इट इज अमंग्स द मोस्ट और इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ द प्रोफेशन। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1956 में जो लॉ बनाया गया था, आई एम सॉरी टू से, इट डज नॉट कट द आइस, इट डज नॉट एक्चुअली एड्रेस द प्रॉब्लम्स। मेल प्रोस्टिट्यूट्स का नाम नहीं लिया गया, लेबर लॉ से प्रोटेक्शन नहीं है। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुम इंश्योर करोगे कि वो वॉलंटरीली इस प्रोफेशन में है या फिर कि उसको फोर्स किया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल एंड नॉट अ ग्रुप? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पार्ट। जैसे ही लॉ एम्बिगुअस हो जाता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स इट। सो 1986 में इस इमोरल ट्रैफिकिंग इस सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड चिल्ड्रंस एक्ट को रिप्लेस किया गया बाय व्हाट इज कॉल्ड एज द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट के 2009 की एक लैंडमार्क जजमेंट में सेड दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस लॉ को अमेंड करो और मेक श्योर कि प्रोस्टिट्यूशन को एक ऑक्यूपेशन का दर्जा मिले और उस प्रोस्टिट्यूशन को ऑक्यूपेशन का दर्जा मिलते ही उसको लीगलाइज किया जाए। सो ये बहुत लंबी कहानी चल रही है एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आपको बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में ये मिलेगा। नाउ द सिचुएशन हियर इज दैट अगर आप इसको फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट में देखोगे तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट you have to understand Article 19(1)(g). Article 19(1)(g) says a very beautiful thing। अगर उस लाइन को पकड़ोगे तो जो लोग मुझसे पढ़े उनको मालूम है हो जाएगा। It says every citizen is free, every citizen is free to take up any occupation, trade or business। ये वर्ड है, to do any occupation, trade or business। इसमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स है, ओके, इसमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स है। अगर इसको थोड़ा सा नोटिस करोगे तो इसमें एग्जाम्पल रादर एक्सेप्शन है। कौन से एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है कि जैसे आप इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते, ओके। अब ध्यान से सुनते जाना, इसमें तो इमोरल एक्टिविटीज को सो कॉल्ड नहीं इन्वॉल्व कर सकते, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ड्रग पेडलर बन जाऊंगा, ऑब्वियसली। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं टेररिस्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा, सर्टेनली नो। अच्छा, फिर इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के बाद, ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इसमें थोड़ा बहुत और एक्सेप्शन आता है। जैसे स्टेट के कुछ मोनोपोलाइज बिजनेसेस या ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, ओके। तो आपने मालूम ही है कि स्टेट कुछ चीजों पे मोनोपोली रखती है, आप न्यूक्लियर एटसेट्रा एंड सो ऑन। मेरे प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि इस बेसिस पर अगर हम आर्टिकल 19(1)(g) को देखें, ओके, जिसमें राइट टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस आ रहा है, तो यहां पर एक बड़ी अजीब सीन खत्म आ रही है। एक जगह पर हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं कि आर्टिकल 19(1)(g) अवेलेबल टू एवरी सिटीजन है। दूसरी साइड पर हम सेक्स वर्कर्स को इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट या फिर उससे पहले सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड चिल्ड्रंस एक्ट, ओके, के अंडर डाल देते हैं। इसी को SITA एक्ट बोलता जाता था। ये जो एक्ट है, ओके, इस एक्ट के अंदर आपको नोटिसेबल ये हो जाएगा कि 1958 में एक सेक्स वर्कर कॉल्ड हुस्ना बाई ने इसी एक्ट को चैलेंज किया था इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, सेइंग कि आप क्या कर रहे हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आर्टिकल 13 सेज दैट एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, any legislation which violates, abridges or contravenes, मैंने क्या बोला? violates, abridges or contravenes any of my fundamental right, any of my fundamental right to the extent of the contravention। तुम एक बार खोल के देखो, ओके, तुम्हें पता चलेगा कि मैं एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स बोल रहा हूं। To the extent of contravention shall be held as null and void। अब तुम्हें सच सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां पर है मेरे बच्चा, ओके,
द आर्टिकल 19(1)(g) और यहां पर है द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट बोल रहा है ये आप XYZ कंडीशंस में लीगल है, XYZ कंडीशन में इलीगल है, या अलाउड नहीं है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ दिस पार्ट। जैसे आप उसको इलीगल बोल रहे हो, इट इज ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, तो तुम उसको आर्टिकल 19(1)(g) की वायोलेशन में या अब्रिजमेंट में या कॉन्ट्रावेंशन में बोल सकते हो। अब तुम्हारे में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर गलत बात है, क्यों? आपने पूरा पढ़ा नहीं। क्या नहीं पढ़ा? हम लोग इसको इलीगल इसीलिए बोल सकते हैं, चलो ना भी बोलो, इमोरल ये जरूरी है। और अगर तुम इसको इमोरल बोल रहे हो तो तुम सोसाइटी की एक मेजर हिपोक्रेसी का पार्ट हो, क्योंकि उस सोसाइटी में जहां पर सिटीज के ठीक बीचों बीच रेड लाइट एरियाज है, सबको मालूम है ये हो रहा है, तो भी तुम इसको इमोरल बोल रहे हो। ये इल्जाम किस पर है? ये इल्जाम सेक्स वर्कर्स पे है कि ये इल्जाम सोसाइटी पर है। तो बोलना बड़ा आसान हो जाता है कि हम लोग जस्टिस की तरफ जा रहे हैं, बोलना बड़ा आसान हो रहा है कि हम इक्वालिटी देना चाहते हैं। द पॉइंट इज हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट कि कहीं हम अपने आप को सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे, कहीं हम अपने सिटीजन्स के साथ जाने अनजाने हम लोग एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहे, कहीं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ड्रीम से दूर तो नहीं जा रहे। सो लाइक हुस्नाबाई ने चैलेंज किया था ये एक्ट इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, कंटेंडिंग that the legislation infringes upon her fundamental right to occupation. The court ने बोला था the state could not deny that prostitution was a trade for the purpose of Article 19(1)(g). अब प्रॉब्लम ये है कि courts will always pass judgments according to their wisdom and they are 9 out of 10 perfectly on the target. लेकिन what does actually change in the terms of society is what actually will determine the entire thing. अगर सोसाइटी में चेंज नहीं हुआ तो then there is of no use to this part. So डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया था कि is our constitution a legal document? तो he said no, it is a social document written in legal language. मैंने क्या बोला? It is a social document but written in legal language. ये लीगल डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं है, इस लीगल डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं है अगर हम इसको सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं है अगर हम इसको सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमें फॉर्मल इक्वालिटी का कोई फायदा नहीं है अगर हम इसको सोशल इक्वालिटी में या सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारा कॉन्सेप्ट ये सिर्फ जुडिशरी के बारे में पढ़ना नहीं है। द आइडिया हियर इज कि देयर हैज टू बी अ सब्सटेंटिव चेंज इन द सोसाइटी, जो सैडली आज तक नहीं हुआ है। सो वी आर स्टिल इन दैट एस्पेक्ट दैट अभी तक ये नहीं हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मैंने जब बोला था that the suppression of immoral trafficking in Women and Children's Act of 1956 का एक्ट है, आज करीब करीब 65 years हो चुके हैं उसके। सो और उसके बाद अमेंडमेंट को ही we have done to about 35 years now. So have we reached that place जहां पर सेक्स वर्कर्स ये बात बोल सकते हैं कि they are not being discriminated against? If not, then we have miles to go before we sleep. So the Honorable Supreme Court, of course, as the custodian of the Constitution of India, ये लाइन तुमको बड़ी स्ट्राइक कर गई होगी, because custodian of the Constitution of India ये क्वेश्चन आया हुआ है। So 2015 के UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था। तुम नोटिस कर रहे हो मैं यहाँ पर जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ वो तुम्हारी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
that Supreme Court is the custodian of the Constitution of India. तब Honorable President और ऐसे दो तीन और choices भी थी, but obviously the answer is this. So Supreme Court said it would not take an elitist view on the ban on begging and order the removal of all work beggars from the street. Now it is very very important कि हम इस elitist view को भी देखें. सी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में एक एक बहुत कॉमन क्रिटिसिज्म आता है, एट मल्टीपल टाइम्स ये क्रिटिसिज्म आता है, और वो क्रिटिसिज्म आता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि देयर इज टॉप बॉटम अप्रोच और व्हाट इज कॉल्ड एज कि भाई तुम एयर कंडीशन रूम्स में बैठकर ये डिसाइड कर लो कि वॉट एवर इज गुड अकॉर्डिंग टू अस विल बी गुड फॉर दोज पीपल एट द ग्रास रूट लेवल. नो, डॉक्टर अंबेडकर एंड द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली ये मेंशन किया था, दिस इज अ सोशल डॉक्यूमेंट रिटन इन अ लीगल लैंग्वेज. ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए लिखा हुआ है, एक आम इंडियन के लिए लिखा हुआ है, इवन दो इट इज रिटन इन लीगल लैंग्वेज. बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन सच यही है कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन यही सोशल फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए इन द व्यूज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर ऐसे ही लिखा गया था. So he wanted to address things like discrimination. He wanted to address things like the so-called minorities, the situations of untouchabilities and equalities and liberties and name it, religion and so on so. So जब एक एक पिटिशन ये डाला गया कि सर ये माय लॉर्ड्स नो रास्ते पर खड़े होकर बेगिंग की जाती है, भीख मांगी जाती है, ओके, उससे डिस्टरबेंस होती है, राइट, और ट्रैफिक खराब होता है, एटसेट्रा, ये सब खराब है, तो इनको हटा दिया जाए. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़े क्लियरली बोला कि ये मत बोलो. You have to understand that it is a socio-economic reality that people are being forced to beg on the street. ये reality है, okay? और हम यहाँ से बैठे just because we want to clean off our streets या roads, हम इसको certainly allow नहीं करेंगे, and we will not pass such an order. And the idea that is here is that India is a welfare state. So Article 38 of the Constitution is very clearly mentioning about this part, and it says that India shall strive to be a welfare state in which justice, social, economic, political shall inform every sphere of national life. क्या line solid है, welfare state. जब तक आप welfare state, जब तक least common डिनोमिनेटर पे बात नहीं पहुंचेगी, तब तक आप नहीं पहुंच पाओगे टू एनीवेयर क्लोज टू दैट बिग ड्रीम of a welfare state. So it is very very important part that until the Indian state succeeds in fulfilling its welfare agenda enshrined in the DPSP, जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया, Article 38, and ensures the right to live with dignity under Article 21, it has no moral authority to ban begging or for that matter prostitution. आपको ये just because कोई situation है, आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा. एंड फाइनली फैजल साहब सेज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, सेक्स वर्क शुड बी फुल्ली लीगलाइज्ड and regulated not only for women but for men and members of the LGBTQ plus community. The state should play the role of a Gangubai Kathiawadi-like figure, a benign protector and not Mr. Bumble-like persecutor. So ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक ही कॉन्सेप्ट पर हमको निकले, and that is of welfare state. So very beautifully written article, very nicely इंक्लूडेड. और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी को एक्सटेंड किया करूं, बिकॉज जहां पर हमारे सामने एक रेगुलेशन या फिर एक अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट चल रहा है, वहां पर हमने ट्रांसजेंडर्स के और भी थोड़े इश्यूज देखे, तो मैंने सोचा तुम्हारी एग्जाम के लिए मैं और तुम्हारा भला कर दूं. सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वी कैन डू ऑलवेज द एलजीबीटी प्लस कम्युनिटी के बारे में भी. सो वील टेक इट फ्रॉम हियर and we'll connect it to the LGBT plus community, and there are more discriminations that we can study from here, not only with regards to begging but also with regards to prostitution, but also with regards to LGBT. So please remember, भूलना वाली बात नहीं है, that we are talking of Article 21, we are living with choice and dignity, that is the entire context. तो इसी एस्पेक्ट में अब हम आगे देखेंगे. इससे पहले मैं हम थैंक यू बोलेंगे to Mr. Faisal for writing such a beautiful article,
and we will be able to understand. तो तुम नोटिस करोगे कि मैंने ये पूरा का पूरा पढ़ा दिया फ्रॉम गंगूबाई काठियावाड़ी यहाँ से लेकर ऑल द वे टिल हेयर। तो तुमने नोटिस किया हमने पूरा का पूरा आर्टिकल कर दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला, और मैंने तुम्हें सारे एस्पेक्ट्स बता दिए, हाउ टू कनेक्ट विद द एग्जाम, how to connect with the various aspects of various articles of the constitution, और तुम्हें आज पता चल गया है कैसे पढ़ते हैं पॉलिटी। तो ऐसे हम बहुत सारा और टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, और इस चीज को हम एस्पेक्चुअली और भी अच्छे से करेंगे। लेकिन अब मुझे एक और एस्पेक्ट देखना है जो कि रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो एक और न्यूज आई थी द हिंदू में, दिस इज प्रीवियस ईयर की, बट आई थिंक दिस इज वेरी रेलेवेंट कि आज हम इसको पढ़ रहे हैं, तो व्हाई नॉट स्टडी इट हियर आल्सो। सो इट सेज नो पीनल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट ट्रांसजेंडर्स फ्रॉम असॉल्ट। ये एक प्ली डाला गया है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला गया है इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये बात बोली गई कि जब आप इंडियन पीनल कोड खोल के, आईपीसी भारतीय दंड संहिता जब आप खोल के देखते हो, तो उससे मेन को प्रोटेक्शन है इन काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ एन असॉल्ट और समथिंग लाइक दैट। विमेन को असॉल्ट की प्रोटेक्शन है, ओके। ट्रांसजेंडर्स एक्सप्रेसली उनको प्रोटेक्शन नहीं है। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स यहाँ पर जो स्टोरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आएगा वो आएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 says equality before law and equal protection of laws। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड वी विल हैव टू अप्रिशिएट कि अगर मेरे पास इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज नहीं है, ओके, देन मेरा आर्टिकल 14 वायोलेट हो रहा है। और आर्टिकल 14 अगर वायोलेट हो रहा है तो मेरा फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है, फंडामेंटल वायोलेट हो रहा है तो मुझे सुप्रीम कोर्ट ही बचाएगा। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस दैट सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि तुम इस इन ट्रांसजेंडर्स को यू विल हैव टू गिव व्हाट इज कॉल्ड एज इक्वल प्रोटेक्शन। सो इफ यू अंडरस्टैंड इक्वल प्रोटेक्शन एट दिस स्टेज, आई विल बी, इसी चीज को हम और डिटेल में अब करेंगे। सो वील अंडरस्टैंड दिस। तो पहले एक एक करके पीआईएल को समझेंगे कि ये हुआ क्या। सो पीआईएल आई होप सबको मालूम है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इट हैज अर्ज्ड द सुप्रीम कोर्ट टू इशू एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट्स, रिस्पोंडेंट्स मतलब द यूनियन ऑफ इंडिया, ओके, द गवर्नमेंट, सो ये है यूनियन ऑफ इंडिया, टू पास एन एंटी discrimination bill that penalizes discrimination and harassment on the basis of gender। So तुम्हें यहां पर जितने भी कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना उसको अंडरलाइन कर लो, ओके, तुम अपने अपने नोट्स में कर लेना, मैं यहां पे कर लेता हूं। सो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। व्हेन आई से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इट इज सेड दैट इट इज अ सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय कंसर्न्ड सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। ये आर्टिकल 32 के अंदर डाली गई होगी, बिकॉज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है। सो ट्रांसजेंडर्स की तरफ से ये जो डाला गया है कि आर्टिकल 32 में इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल पास व्हाट इज कॉल्ड एज अ रिट, एंड दिस विल बी एट अ लेटेस्ट स्टेज ऑब्वियसली। उससे पहले रिस्पोंडेंट्स को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी बात रखेंगे, तो यूनियन ऑफ इंडिया अपना अपना पॉइंट प्लेस करेंगे। दिस इज द पॉइंट हियर इज कॉल्ड एज ऑडियो अल्टरम बॉटम, दैट इज हियर द अदर साइड। और ये अर्ज किया गया है, द प्रेयर ये है इन द पीआईएल दैट माय लॉर्ड्स प्लीज मे काइंडली पास एन ऑर्डर directing the Union of India to pass an anti-discrimination bill, since this is required to penalize any kind of discrimination and harassment on the basis of gender। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? Because discrimination under Article 15 भी allowed नहीं है। Article 15 says that no citizen shall be discriminated on the basis of race, religion, caste, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहां पर एक और चीज रिलेट होगी जो मैं तुमको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, एंड दैट विल बी एट अ लेटेस्ट स्टेज विद रिगार्ड्स टू ट्रांसजेंडर्स बीइंग अप्रिशिएटेड ऑन दिस पार्ट। सो द प्ली हैज सॉट, ये पीआईएल हैज सॉट अ डायरेक्शन टू द सेंटर to make appropriate modifications or interpretations of the provisions of Indian Penal Code dealing with sexual assault to include transgender
ट्रांससेक्सुअल्स, किन्नर एंड यूनक्स इन द डेफिनेशन अकॉर्डिंगली। तो मैंने बोला था असॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके, विच वी आर टॉकिंग ऑफ ऑब्वियसली सेक्सुअल असॉल्ट, तो इसमें हमारा सिचुएशन विल बी मेन और वुमेन हैव बीन प्रोटेक्टेड। ट्रांसजेंडर्स का नाम क्यों नहीं है? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और मैंने तुम्हें दो चीजों से यहां से कनेक्ट करके दिखा दिया। एक है आर्टिकल 14 विच इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक है आर्टिकल 14 का दूसरा एस्पेक्ट विच इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, दोनों ही ये इंश्योर करना चाहिए कि एवरीवन मस्ट गेट दिस बोथ दीज फंडामेंटल राइट्स। और ये इस पीआईएल का पार्ट है। दूसरा कि भाई किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन मत करना ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये सेक्स वाले रिलेशनशिप से दूसरी बात समझ में आएगी। सो द पॉइंट हियर इज कि ये दोनों ही चीजें मेंशन्ड है इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब तुम्हें ना एक क्वेश्चन आया था, मुझे पता नहीं तुमको याद है कि नहीं। सो दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी 2020 में आया था। ओके, कि हाउ डज इंडिया एनफोर्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और डू वी और वी डोंट वी? It does. Please remember, fundamental rights is a integral element of our commitment as the signatory to Universal Declaration of Human Rights. So, चाहे fundamental rights हो, चाहे preamble हो, चाहे fundamental duties हो, these are all coming from the signatories. So, we have our commitment. India has its commitment of having what is called as the एनफोर्समेंट और द इंश्योरिंग कि हमारे सिटीजन्स को मिले व्हाट इज कॉल्ड एज द ह्यूमन राइट्स। सो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ डाला जाता है, एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो या जब भी आप किसी भी सोशल एंगल को देखते हो, उसको नैरो एंगल में मत देखा करो कभी भी। डोंट लुक एट एज ए नैरो एंगल। ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एंड दैट इज हाउ यू मस्ट स्टडी दिस। सो हम देखेंगे इसमें व्हाट आर वी स्टडिंग, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके, जस्ट टू make sure that we understand this. A petition said that there was no penal provision that protected transgender persons from sex crimes. यहां पर चैलेंज किया गया है सेक्शन 3454 ए को, जिसमें आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन लिखा गया। ओके, to the extent that they are interpreted to exclude victims who are transgender person. तो एक्सक्लूजन जब हो जाएगा तो देयर विल बी ऑब्वियसली आर्टिकल 14 की वायोलेशन की, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर्स आल्सो? सो दिस इज व्हाट दिस पिटिशन इज अबाउट सेइंग कि अगर ऐसे 150 354 ए आईपीसी को अगर आप इसी पोजीशन में रखोगे जैसा है, then it is indirectly or directly violating article 14, and we are not getting the protection before law, and this is why we must be, the Union of India must be told to modify this ASAP. So this is the issue. Okay, अब हम ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो you'll be able to understand this. So 1 हो गया, 2 हो गया। Second, the plea referred to the provisions of Indian Penal Code and other criminal laws do not mention transgenders, transsexuals, kinner and eunuchs. यहां पर मैंने इसीलिए पढ़ाना स्टार्ट किया था बिकॉज हमारा जो पहले वाला आर्टिकल था उसमें LGBTQ प्लस कम्युनिटी को ये बात किया गया था। इन स्पाइट ऑफ डिक्लेयरिंग transgender people to be a third gender by this code, there is no provision or section in the Indian Penal Code which will protect the third gender from sexual assault by male, female or another transgender. तो यहां पर अगर तुमने इस एस्पेक्ट को देख लिया और अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत भी इंडियन पीनल कोड को बात याद है, क्योंकि मुझे ऐसा पूरा शक है कि आज नहीं तो कल ये सब क्वेश्चन जरूर पूछने जाने लग जाएंगे एस्पेक्ट ऑफ दिस पार्ट, बिकॉज जैसे इस पर आया जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के क्वेश्चन, वैसे ही पैरोल के क्वेश्चन आ चुके हैं, उससे पहले लीगल एड पे क्वेश्चन आ चुके हैं। आई एम श्योर थोड़ा बहुत तुमको क्रिमिनल प्रोविजंस भी मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन में इस पॉइंट पर एक मेजर एस्पेक्ट दिख रहा है मुझे, जिसको हम लोगों को ध्यान देखना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ डिक्लेयरिंग ट्रांसजेंडर पीपल टू बी अ थर्ड जेंडर बाय दिस कोड, देयर इज नो प्रोविजन सेक्शन इन द इंडियन पीनल कोड विच में प्रोटेक्ट द थर्ड जेंडर। अब ये जो लाइन है ना, टू बी अ थर्ड जेंडर, इस लाइन से मुझे कुछ और टॉपिक पढ़ना है। ओके, अब कुछ और टॉपिक पढ़ लेंगे।
जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे, वो ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है, विच इज द नालसा केस, पॉपुलरली कॉल्ड एज द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिसाइडेड ऑन 2014, जिसमें जो मेरे ख्याल से ये एक रिट पिटिशन तुम्हें सामने समझ आ रहे होगे, मेरे ख्याल से इस पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि कितना आभार व्यक्त किया जा रहा है, कितने खुश है the LGBT community, the transgenders. Why? Because इनको recognition दिया गया था by this landmark judgment as the third gender. So this was the huge case of Nalsa versus Union of India, and the context here is this is the entire case. तो मैं इसको खुद नहीं पढ़ूंगा because there is no possibility that any one amongst us will be able to do justice to this beautifully written judgment. एंड मेरे ख्याल से हम उसी जजमेंट का अगर स्क्रीनशॉट्स लेकर देख लें, इट विल एक्सप्लेन यू सो ब्यूटिफुली. तो एड वर्बैटिम, ओके, एड वर्बैटिम नहीं, लेट मी कोट इट, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड. आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये नालसा जजमेंट की ऑब्जर्वेशन है. आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू, ये वर्ड देखो यार, ये वर्ड कितना कीमती है, एनी पर्सन, सिटीजन, नॉन सिटीजन, इंडियन, फॉरेनर, डजंट मैटर. क्या इट ऑल्सो मीन्स इन द टर्म्स ऑफ मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर? वैसे तो अब हमें मालूम पड़ गया है, लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ, ऐसे सोच के कि हम स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से हमने पिटिशन डाली है. So let us see how the Honorable Supreme Court is interpreting this so-called complicated topic and try and understand this. So equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. It also ensures equal protection and hence a positive obligation on the state to ensure equal protection of laws by bringing in necessary social and economic changes so that everyone, including transgenders, may enjoy equal protection of laws and nobody is denied such protection. It does not restrict the person. इसको underline कर लो. It does not restrict the person or the word person. It does not restrict the word person. वरना वर्ड लिखा जाता तो पर्सन इंक्लूड्स ओनली मेल एंड फीमेल, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ. एंड दैट इज व्हाई इट इट इज नॉट लिमिटिंग इट्स एप्लीकेशन ओनली टू मेल और फीमेल. Hijras or transgender persons who are neither male or female fall within the expression, and I quote, person. Hence, entitled to legal protection of laws in all spheres of state activity, including employment, healthcare, education, as well as equal civil and citizenship rights as enjoyed by any other citizen of this country. Subject समझो मेरा बच्चा. Get this subject. Get it so beautifully. It is absolutely clear. कि जहां मैंने ये लिखा था स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, डज इट इंक्लूड मेल? यस. डज इट इंक्लूड फीमेल? यस. डज इट इंक्लूड ट्रांसजेंडर्स? It must include transgenders. Why? Because there is no restriction to this. There is no restriction to this definition anywhere. Discrimination on the grounds of sexual orientation or gender identity therefore impairs equality before the law and equal protection of laws and violates Article 14 of the Constitution of India. So it is a very strong definition on this part. अब इसी को हम Article 15 और Article 16 से भी associate कर सकते हैं. Article 15 and 16 prohibits discrimination against any citizen on the basis of following grounds. वहां पे लिखा हुआ है रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. अब तुमको याद आ रहा होगा जब मैं ये पहले पढ़ा रहा था तो मैं 15 के आगे वहां पे जहाँ सेक्स वर्ड था उसको मैंने सर्कल किया. क्यों क्यों मैंने सर्कल किया? बिकॉज ये क्वेश्चन हमको बहुत नॉर्मली तब तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ था जब तक नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की जजमेंट नहीं आई. डज द मीन वर्ड सेक्स और द जेंडर जिसको है उसको सिर्फ मेल और फीमेल बोला जाए?
या फिर थर्ड जेंडर के नाम पर एक स्पेशल आइडेंटिटी भी मिले टू ट्रांसजेंडर इज द एक्चुअल मुद्दा ऑफ दिस केस. In fact, both the articles prohibit all forms of gender bias and gender-based discrimination. Constitution makers gave emphasis to the fundamental rights against sex discrimination so as to prevent the direct or indirect attitude to treat people differently for the reasons of not being in conformity with stereotypical generalizations of binary genders. हमारी एनसीईआरटी की बुक में इफ आई एम नॉट रॉन्ग या तो 6th की या 7th की एनसीईआरटी में एक पूरा चैप्टर है दैट इज विद डीलिंग विद स्टीरियोटिपिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन. यू मस्ट लुक एट दैट, वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने तभी सब लोगों को बोला कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करो. व्हेन वी आर सेइंग जेंडर, तो हमारे एक स्टीरियोटिपिकल बिलीफ सिस्टम है कि जेंडर मतलब मेल एंड फीमेल. ये स्टीरियोटिपिज्म से फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर हमको बचाना चाहते थे. इनफैक्ट वो हमको रोकना चाहते थे. एंड दैट इज व्हाई द एंटायर कॉन्टेक्स्ट अबाउट यहां पर कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, ऑल ऑफ देम सेज एनी काइंड ऑफ द स्टीरियोटिपिकल बेस्ड और स्टीरियोटिपिज्म बेस्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही नहीं करेगा. सो जब हम बोलते हैं कि यार ये मेल है या फीमेल है, okay, and we don't accept transgenders as a third one, then or the third sex or a separate gender, we are automatically violating article 15 and 16. So both gender and biological attributes constitute distinct components of sex. Biological characteristics like genitals, chromosomes, secondary sexual characters, but even gender attributes also include one's self-image and any kind of sexual identity and character एक इंडिविजुअलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. लाइफ माय फ्रेंड्स इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी. हेंस एस किसी भी जेंडर आइडेंटिटी को अगर आप सेल्फ इमेज को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, you are automatically discriminating or violating Article 15 and Article 16. So you have to be very, very carefully important. Analyze the last paragraph of this part. The expression sex used in Article 15 and Article 16. Line देखो, is not just limited to biological sex of male or female, but intended to include people who consider themselves to be neither male nor female. Article 15 subclause 2 जिसमें बोला गया there will be no liability, no limitation, no restriction. To Article 15 subclause 4, okay, in other words यहाँ पे 15 subclause 3 आ गया, there shall be special provision for women and children. 15 subclause 4 that there shall be special provisions regardless of Article 29 with regards to upliftment of social and economic backward classes, etc., and so on and so forth. ये and including Article 16 subclause 4 ensures social equality. मेरी पहला लाइन तुम्हें याद होगा, अगर तुम इसी वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो मैंने तुम्हें एक पूरी कथा सुनाई कि लीगल इक्वालिटी इज ओनली द बिगिनिंग. इट इज ओनली द बिगिनिंग. द बिगिनिंग इज लीगल, इट इज प्रोसीजरल, एम इज सोशल इक्वालिटी. So, ये नालसा की judgment is actually taking us to that direction where we can understand that until unless हम उस social equality को achieve करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है. अब ये दोनों ही खेल बड़े ही complicated हो गए. दोनों खेल complicated कैसे हो गए? Complicated ऐसे हो गए कि कभी कभी हमारे पास legal या फिर political rights होते हैं, उसके बाद भी सोशल इकोनॉमिक राइट्स नहीं बनते या फिर सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आती. मेरी बात समझने की कोशिश करो. अब इसमें 2-3 रीजन हो सकते हैं. एक हो सकता है या तो लॉ है ही नहीं. अच्छा, सो नंबर 1 हो सकता है देयर इज नो लॉ, अभी तक उस बारे में लॉ बना ही नहीं. ओके, दूसरा ये हो सकता है कि लॉ इनकम्प्लीट है. ओके, लाइक इन दिस केस कि भाई मेल्स को तो बचा लिया, फीमेल्स को बचा लिया, ट्रांसजेंडर्स को नहीं बताया. थर्ड, या फिर लॉ एम्बिगुअस है यानी कि हेजी है, जैसे हमने प्रोस्टिट्यूशन वाले केस में देखा. तो हमें नो लॉ भी सिचुएशन हो गया,
लॉ इनकम्प्लीट वाली भी सिचुएशन हो गई और लॉ एम्बिगुएट भी हो गया। अब यहां पर यह बात है, मेरा फाइनल एम सिर्फ लॉ या पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी है। तो अब इसको आप दूसरी तरफ से भी देख सकते हो। क्या ऐसा बोला जा सकता है कि सोशल इक्वालिटी लाओ और लॉ मत लेकर आओ? अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो वी आर अ सोशलिस्ट स्टेट सो टू से इन टर्म्स ऑफ बिलीफ सिस्टम। लेकिन हमारे लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो एस्पेक्ट होता है उसमें द स्टेट एनफोर्सेस और स्टेट रादर प्रोटेक्ट्स योर राइट्स थ्रू लॉ। तो ये कैसे समझा जा सकता है? तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ये है लॉ, ये फर्टाइल लैंड है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ये फर्टाइल लैंड है। ये लॉ उस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, उस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करेगा जिसके अंदर आप सोशियो इकोनॉमिक राइट्स और सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी नाम के पेड़ों को या फलों को या फूलों को जन्म दोगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। समझ में आया बेटा? पॉलिटी कैसे पढ़ते हैं? यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? सो लॉ को और अगर ऐसा नहीं होगा तो देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी मैनेज कर लेगी, बट इन मेनी प्लेसेस जहां सोसाइटी अपने आप मैनेज नहीं कर पा रही, अपने आप दे आर नॉट एबल टू गिव द राइट्स या अपने आप दे आर नॉट एबल टू गिव प्रोटेक्शन, देन इट इज फॉर यू or it is for the state to ensure that they will give you a legal environment, a political environment where this is possible. और ये सिर्फ 14, 15, 16 की कहानी नहीं है, it is a far bigger कहानी। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। इतने क्लियर टर्म्स में मैंने तुम्हें बोला आर्टिकल 21 इज इज द इट इज द बेडरॉक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था मनिका गांधी के वाले केस में और फ्रांसिस कोरालियन केस में दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइफ एंड दैट लाइफ इज नॉट मियरली लिविंग। सांस लेना, सांस लेते रहना इज नॉट इनफ, इट इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। सो इट इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं तो सेंस ही नहीं है यार, क्या करोगे ये सब बातें, ये सब नो कुछ तो लोग कहेंगे। नो, हमारा हार्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल इज आर्टिकल 21। तो अगर हम अपने लोगों को, और यहां तो एनी पर्सन लिखा हुआ है, तो एनी पर्सन को अगर हम उसकी चॉइस, डिग्निटी, ओके, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज, ये उसको देने के बाद उसको रिकॉग्नाइज ना करे और उसके साथ फिर उसको अदर जेंडर से, मेल फीमेल से या उसको डिस्क्रिमिनेट करे, फॉर दैट मैटर हम लॉ को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं दे, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, द एंटायर थिंग विल गो डाउन द ड्रेन। ये सारा का सारा खराब हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया चेंज्ड फॉर ऑलवेज। सो ये एग्जैक्ट जजमेंट हम पढ़ेंगे और इस जजमेंट से कितनी इंपॉर्टेंट बातें समझ आ जाएगी और तुम्हारा फेथ राइज हो जाएगा इन कि जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जब तक जुडिशरी है, जब तक कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये जजमेंट थी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर्स guaranteed in the Constitution of India। इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये पीआईएल किस बेसिस पे थी? दिस वाज पीआईएल की वायोलेशन ऑफ 14, 15, 16 एंड 21 हो रहा है। लेट अस द writ, the entire writ has to ensure कि ये रिपीट ना हो। So it was declared that one, hijras, eunuchs, apart from binary gender, must be treated as third gender. Two, transgender persons right to decide their self-identified gender is also upheld. What a beautiful point. अगर तुम्हें समझ में आ गया, right to decide their self-identified gender। बेटा लाइन को समझो, I will decide my own identity। I will decide, choice, and you will give me respect, dignity by treating us as third gender।
ये हमारे फ्रेटर्नल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है माय फ्रेंड्स, ये हमारी फैमिली है, वी ऑल आर इंडियंस, वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स आइडेंटिटीज, ईच अदर्स चॉइस एंड डिग्निटी. सो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर, क्या डायरेक्टेड द सेंटर, अरे रेट, अच्छा ओके, writ to the center, the state government. Number one, to grant legal recognition of their gender identity, such as male, female, or as third gender. Two, take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and public appointment. तो अगर तुमको आर्टिकल 46 मालूम है तो उसमें एक डीपीएसपी है, दैट देयर शैल बी अपलिफ्टमेंट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल राइट्स एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. नहीं, नहीं थे ना, वेरी गुड. सो आर्टिकल 46 में वहां पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स था एंड वहां पे वर्ड था वीकर सेक्शन. लेकिन जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 आया तो उसी आर्टिकल 46 से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 इमर्ज किया गया और वहां पे जो आर्टिकल 46 में वीकर सेक्शन वर्ड यूज किया गया था उसी को कन्वर्ट करके यहाँ पे कह दिया गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. यही सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के अंडर यू कैन गिव स्पेशल प्रोविजन. समझ में आया? अगर ट्रांसजेंडर्स को सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस में इंक्लूड किया जाएगा तो ही दे कैन गेट द सो कॉल्ड special provisions under Article 15 subclause 4. Sort, what an important part. Operate separate HIV serosurveillance centers since Hijras transgenders face several sexual health issues. Seriously address the problems faced by Hijras such as fear, shame, gender dysphoria, social pressure, depression, suicidal tendencies, social stigma, etc. and any insistence for SRS for declaring one's gender is immoral and illegal. Take proper measures to provide medical care to transgenders. Take steps for framing various social welfare schemes. Take steps to create public awareness so that TGs or transgenders will feel they are also part and parcel of social life and not to be treated as untouchable. So इस पे एक और क्वेश्चन आ जाता है. आर्टिकल 17 जहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए लिखा देयर शैल बी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसका एक इंटेग्रल एलिमेंट और एक्चुअली द कीवर्ड है इसकी अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया. एनी काइंड ऑफ दिस स्टिग्मेटाइज्ड और सो कॉल्ड एन मास काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन can be treated as untouchability और अगर ये untouchability है then it is violation of your fundamental right again. Very good. And finally, take measures to regain their respect and place in the society, which once they enjoyed in our cultural and social life. Line समझ में आ गई? What has Honorable Supreme Court ensured by this judgment? We have ensured that you don't only get your legal and civil rights, but also get your social and economic rights. In other words, we are paving our way to become the welfare state that has been promised under Article 38. Full stop. ऐसा आंसर दोगे full marks आएंगे. So that brings us to the end of this topic. And if you are understanding this और आपको ये समझ में आ गया कि मैं कुछ एक घंटे में 1.5 घंटे में तुमको इतना डिटेल में पढ़ा सकता हूं, I hope you can understand we can go far more in detail. And this is how we study for the toughest exam so called in the world. लेकिन अगर उसको ढंग से किया जाए you have a realistic chance of cracking this exam. So use my code SIDLIVE SIDLIVE. SIDLIVE मेरा कोड है. Use it and you will get immense discounts and you will get the awesome opportunity to get 24 karat rock solid preparation. Don't let go of this opportunity. So in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.